Okay, so uh, today we'll start with uh, career counseling. So, what is career counseling, Veena ma'am? शिवांकी will join later on. So, आपसे शुरू करते हैं. Recording हमने on कर ली है. So what is career counseling? Well, sir, I think career is something that we take up as a job or as a work that we want to do, which currently, especially in India, people just take it up based upon what my parents are saying or what my friends are saying and all. But as a counselor, we can actually provide bouquet of options that are available based upon the interest that the student has. So I feel this is a profession. Career counseling is a profession that is very much in need, demand, which the youth needs in India. Sorry, it was very long answer. Okay, okay. नहीं, नहीं, नहीं. We'll keep it like as in a discussion mode Huh. because now today we will discuss like basic concepts of career counselings. What Okay. is career counseling? What are the myths related to it? All those things we'll talk about. And then gradually after like maybe one this class or maybe one more class, and then we'll come to like assessment part of that. Right? Okay, sir. Yes, sir. Okay. So when we talk about career, so uh, like because that is a very common word, right? For parents, Right. for teachers, and for matlab everyone. So career is a very common terms, but it is a complex thing when you decide a career. So and whatever like we decide at one point of time, और पूरी लाइफ हमें उसके साथ रहना है, that kind of thing is there, right? So so it is about like being able to make correct decision, and at the same time is often so essential. It eventually shapes who we becomes, not just professionally but also as a person, because if you are not satisfied with your work, even if like you have a job and everything, and so that will affect your personal life and as a person also. So it determines one's level of satisfaction, well-being and mental state. Suppose you don't like any job and you are doing it from last 10-15 years, so you will be frustrated and you will not feel good, and your well-being will be affected. Your mental status will be affected. Hmm. You may have seen lot of people जिनके लिए हर रोज ऑफिस जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, Hmm. फ्रस्ट्रेटिंग होता है बहुत ज्यादा, है ना? Right. Yes, sir. And Yes. so we are living with it. So whenever we are choosing a job or your career, then it is very important कि क्या वो आपके लिए है, आप उसमें खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, that is also very important. So that is what career is. So it is often so easily confused with the its sibling terms like job, as you like said, job, work, occupation. So these are the different things, and uh, from career, but we use these terms interchangeably, right? So we don't know what is Yes. the difference between these terms. So we'll talk about that also. So it happens all the more as some define career as a sequence of occupations, jobs, and positions occupied by the individual during the course of his or her working life. So they change jobs and they work on different positions, and so इस तरह से चलता रहता है हमारी जो वर्क लाइफ है उसमें. And these terms, though popularly used in the place of terms career, are slightly different from it. But they are different terms. So what are the what does it mean that we will talk about in this slide? So one first thing is job, work, and occupation and career. क्या
इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फर्स्ट थ्री टर्म्स. द फर्स्ट इज जॉब. Job refers to something one does largely with the sole objective of earning money. So you like it sometime in initial stage. What we do is like most of the youngsters, they require money. So whatever they get, like as a job, they take it because at that point of time they need money and everything, right? So whatever job, suppose someone is engineer and he is getting the job of sales person, or in sales में job मिल रहा है तो वो कर लिया, and so इसको हम job बोलते हैं. The purpose is to earn money, that's it, right? And then work refers to the something so worth doing for its own sake. One may get paid or may not get paid for the same. Also, work that may seem right for us at one stage of our life may not be right for us at the next stage of life. So work का चेंज हो सकता है कि भाई आज मुझे कोई चीज पसंद है, काम कोई काम पसंद है, कल वो काम नहीं पसंद हो सकता है, एंड हम कुछ और ले लेते हैं काम करने के लिए, एंड उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, दैट डजंट मैटर. मिल रहे हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई काम मुझे पसंद है, सपोज मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट काम मेरा जॉब है, या करियर जो भी कहना चाहें, आगे हम टर्म से डिस्कस करेंगे. तो एज ए जॉब हम कर रहे हैं, बट मुझे जो काम कुछ और करना पड़ रहा है कि आप जाते हैं और आपको मैनेजमेंट का भी देखना पड़ रहा है, बिकॉज एट सर्टेन point you have to do that thing also, and but you are not paid for that. So that is a work, है ना? And then occupation refers to the specific work activity one is involved in one's occupational work life. So occupation refers to the specific work activity, like as a psychologist taking session, ठीक है, दैट इज ऑक्यूपेशन, कि जो हम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक टास्क हम कर रहे हैं एज इंजीनियर. तो इंजीनियर बहुत सारे जो स्ट्रीम्स में होते हैं. सो मे बी समवन मे बी लाइक डूइंग सम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो दे आर डूइंग इन दैट एरिया स्पेसिफिक टास्क. उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टास्क है कि एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं. अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा है, तो टेलीकॉम में भी मे बी some different activity they are involved. All are maybe 10 engineers are there. They are working in a telecom industry, but they are working in certain areas of that industry, right? So that is your occupation. Then most of us like are involved in either job or work or occupation, and there are very few people living out their careers. So career is a long term thing, like a career path hota hai, like we say sometime. So you start with something, and then usually you that is your career, कि आप उसको कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग रन में, मतलब आप पूरी लाइफ उसको आप करते हैं. तो वो क्या, तो करियर क्या है, कैसे हम लोग उसको डिसाइड करें कि व्हाट इज करियर? सो इट इज समथिंग वन लिव्स विद फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. भाई जॉब चेंज हो सकता है, वर्क चेंज हो सकता है, ऑक्यूपेशन चेंज हो सकता है. आप इंजीनियर ही हैं लेकिन अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं. आज आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परसों तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज आप क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, कल आप मैनेजर हैं, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं. तो इट चेंजेस. सो it provides a sense of happiness and satisfaction, and you enjoy it, you like it, it gives you like happiness and satisfaction. It enables to display one's true potential as one is likely to be the most creative at it. So एक तो आप काम करने के लिए आपको सिखा दिया गया है काम, और वो काम आप कर रहे हो, है ना? As in your job, in your work and in your occupational life, एक particular एक चीज सिखा दी, but you are not enjoying it, and you are not you know like your full potential is not utilized in that area. Because आप इंजीनियर हैं, आपको सेल्स का काम दिया, तो आपने तो इंजीनियरिंग सीखी हुई है, लेकिन इंजीनियर का जो काम है वो आप नहीं कर पा रहे हो, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग इन दैट. सो आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका पोटेंशियल है, दैट इज नॉट like utilized. Or
कभी आप देखते हैं कि हम अपने ऑफिस में आसपास में ही देखते हैं, कुछ लोगों को अपने काम में बहुत मजा आता है कि they are enjoying, they are creating new ways to do work, solving problems. So because they are enjoying, if you are not enjoying, you will not be able to do that. So if you don't have potential, then also you will not be able to enjoy your job, and you will get frustrated at one or other point of time. It brings one's best out as one is passionate about it. So, because you enjoy it, you are passionate about it, so you will work creatively, actively, you will utilize your like creativity also. It adds meaning to life and is closely related to one's identity. So, it is related to meaning of life because you are contributing something, you are earning money, everything is there, but you have a sense of identity that you are doing this work, you are contributing to the society. Suppose there is a software engineer, so they are, and they enjoy it, someone is enjoying it, and they are creating certain software or applications, plugins, which is useful for the people, so they are enjoying it, and constantly they are improving those things. It determines the way one looks at oneself and want the world to see them as. कि आप चाहते हैं कि आपको लोग इस तरीके से देखें, like as a good engineer, as a good doctor, good psychologist. It is something where and that also boosts your self-esteem also. It is something where the hurdles or challenges motives one and motivate, sorry, is spelling, motivate one and make them stand out from the rest. So क्या होता है कि if you are not interested in that particular job, if you are not interested in that work, and you have to do, and then to you have to do that work, and you become frustrated because you are not interested in that, you don't have, or you are interested, you want to do it, but you don't have that much potential in that area. So what will you will get frustrated, and whenever there will be some problem, or because challenges will be there in any job, so what will happen, you will get frustrated, and you may feel depressed, stressed, all those things will happen. So if you are interested, opposite will happen, you will get motivated, because if there is some challenge, so you will try to find out the creative solution for that, so you will work for that. So that happens when you are aligned with your job, or we call it career. So career is a, I think it is a process, you can say, एक लॉन्ग टर्म चीज है जो चलता रहता है आपके साथ. इट मेक्स वंस लव एवरी सिंगल मिनट ऑफ व्हाट वन डज. तो दे अंडरस्टैंड कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो, क्या करते हो, आप उसमें पूरा घुस जाते हैं अंदर, एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, you want to create something new. So that kind of thing happens when you are at right place. Right? Any question? Any question, Veena ma'am? No, sir. नो थैंक यू सर. अच्छा बस अच्छा एक स्टेटमेंट था जो आपने लिखा था ना कि करियर स्टेज फॉर द होल लाइफ, उसी में मेरा जस्ट एक थॉट था सर कि मेरा करियर तो आईटी था 30 साल तक, 32 साल तक आईटी ही था, और मैं उसी में बहुत अच्छा भी कर रही थी, एंड आई लव्ड इट. बट रिसेंटली मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया साइकोलॉजी में. करियर काफी चेंज हो गया. अभी भी मैं आईटी में हूँ, बट आई थिंक वेरी सून आई रियली वांट टू चेंज माय करियर एंड मूव टू काउंसलिंग. So maybe you felt that this is the better career for you. You can utilize your like full potential. आप अपना पूरा potential utilize कर सकते हैं. I think हमारी बात भी हुई थी एक बार, because like you think that you have a good counseling sense, and अच्छी abilities हैं, लोग आपके पास आते हैं, बात करते हैं, that kind of thing, right? हाँ, एज अ कोच. So now you think कि अभी लगता ठीक है, वो काम आप कर रहे थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये जो करियर है, ये शायद आपके पोटेंशियल को ज्यादा बेहतर यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, और आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे. है ना? सो वो ज्यादा आगे आते हैं उस बात पे भी कि किस तरीके से. अच्छा, शिवांकी भी जी आ गई, अच्छी बात है. तो
ये होता है। इसको हम लोग कई बार टर्म देते हैं, अगर करियर के सेंस में हम इसको टर्म दें, हम इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ठीक है, एट हाँ दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी थिंक कि इट इज नॉट लाइक, ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो समटाइम पीपल विल से ऑल्सो, आपको बोलेंगे भी कि क्यों, क्या जरूरत है, आप ये नई चीज में क्यों घुस रहे हो अभी से इसमें, राइट है ना, राइट नहीं बिल्कुल। जाना चाहिए। बट हाँ यू आर कन्विंस्ड कि मुझे जो है इसमें ही जाना है, बिकॉज ये मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। सो वो होता है, तो हम लोग आएंगे, वो पॉइंट भी आएगा अभी। ठीक है सर, ओके, तो थैंक अब यू। तो रॉन्ग रीजंस क्या हो सकते हैं टू चूज करियर, जो अभी आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि किसी ने कुछ बोल दिया या देखा हमने, तो उसकी वजह से हम उसकी तरफ चले गए। सो व्हाट अपीयर्स ग्लैमरस, अब किसी को लगता है एयर होस्टेस का, बच्चों में जब आप बात करोगे तो एयर होस्टेस बनना बहुत अच्छा है, या पायलट बनना बहुत अच्छा है, ग्लैमरस है, या मॉडलिंग करना बहुत ग्लैमरस है, तो वो जो क्यों टीनेजर्स उस तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। तो दैट इज नॉट ए गुड रीजन, बिकॉज हर एक जो प्रोफेशन है उसका एक अपना प्लस माइनस दोनों है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एज ए एयर होस्टेस, तो क्या होगा कि आपकी करियर की जो लाइफ है दैट इज वेरी लेस, लाइक 10 15 20 years आप काम करोगे, एंड देन उसके बाद यू आर फ्री, है ना, देन यू हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। सो दैट इट इज नॉट कि आपको वो करना नहीं है, बट व्हाट यू एंजॉय वो इम्पोर्टेंट है, नॉट कि क्या ग्लैमरस दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड व्हाट सीम्स ट्रेंडी, क्या होता है हर डिकेड में ऐसा होता है, हम सारे लोग ये देख चुके हैं, होता है कि कभी क्या होता है कि एमबीए का ट्रेंड चल रहा है, तो everyone is going into that field, and after some time there is इंजीनियरिंग का चल रहा है तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। आजकल जैसे चल रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हम उसके लिए बने हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर सिर्फ ट्रेंड को देख के जा रहे हैं, अगर आप देखोगे आजकल कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कर ले और ये सारा हो जाए, या बच्चे भी चाहते हैं कि हम ये कर लें, इसमें बहुत अच्छा फील्ड है, बट क्या आप उसके लिए बने हो, क्या वो पोटेंशियल है आपके अंदर, वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये भी एक गलत रीजन हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी में चले गए, तो वो ऐसा हो गया 100 लोग गए, 2 लोगों को सूट कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा, तो ये हो सकता है। व्हाट मोस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स हैव चूजन, अगर देखा ठीक है दोस्तों ने काम कॉमर्स लिया है, इंजीनियरिंग लिया है, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे, बिकॉज तो क्योंकि उनको देख देख के हम भी उसी तरफ चले गए, एंड वी डोंट नो what is good for us, what like potential we have, what we will enjoy, what are our interests, what kind of personality I have। और सपोज सभी को देख रहे हैं कि दे आर गोइंग इनटू मार्केटिंग, राइट, कि एमबीए किया, मार्केट ये किया और मार्केटिंग में जा रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, सो दे आर इंट्रोवर्ट एंड दे डोंट लाइक टू मच लाइक इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, बट दे आर गोइंग इनटू द मार्केटिंग जहां पे उनको वही काम करना है, तो दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सम टाइम। तो बेस्ड ऑन द कॉमनली प्रिविलेंट मिथ्स, तो अब कॉमनली प्रिविलेंट मिथ्स क्या होता है कि ठीक है कि गर्ल्स मैथ नहीं कर सकते, या बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। या जैसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैं अभी भी लोग बोलते हैं कि ये होता है कि साइकोलॉजी पढ़ोगे तो तुम खुद ही पागल हो जाओगे, ठीक है, तो मतलब खिसके हुए लोग होते हैं समटाइम वी से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो या कई बार होता है, बोलते हैं ना ज्यादा पढ़ लिख जाता है जो, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग वी विल लाइक लिसन, सो इस वाली फील्ड में मत जाओ, ये मत जाओ, ये नहीं करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब जैसे नर्सिंग का है, तो नर्सिंग में अब इंडिया में हम देखें तो अभी कॉमनली भी लाइक एक हमारा धारणा है कि सिर्फ फीमेल्स ही नर्सिंग में जाएंगे, और जाते भी ज्यादातर फीमेल्स ही हैं, मेल नर्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, बहुत सारे इस तरह के मैथ्स वगैरह भी होते हैं, तो उसके बेस पे भी हम जो हमारा सपोज कोई बहुत अच्छा फील्ड है उसमें हम नहीं जा पाते, बेस्ड ऑन व्हाट फैमिली एंड रिलेटिव्स रिकमेंड,
अब क्या है कि फैमिली, अब सबके तो, अब हमारे ह्यूमन बीइंग क्या है, सारे के सारे हमारी टेंडेंसी होती है टू टीच। तो हमें मतलब एक बॉन्ड, मतलब एक डीएनए में होता है टीचिंग वाला। तो जो भी रिलेटिव्स आता है, जो भी फैमिली मेंबर आता है, वो कुछ ना कुछ बता के चले, अच्छा ये कर लो ये बहुत अच्छा है, कॉमर्स में चले जाओ ये अच्छा है, सीए बन जाओ तो अच्छा है, इंजीनियर बन जाओ तो अच्छा है, या ये मत करो ये तो बहुत खराब है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो फैमिली मेंबर्स तरह तरह की राय देते हैं, और या उनके उस पे देख के हम लोग उस रास्ते पे चल देते हैं। देन आता है बेस्ड ऑन व्हाट देयर कजिन और एल्डर सिबलिंग आर डूइंग, कि भाई कर रहा है या एक अंकल कर रहे हैं, कोई लॉयर बन गया, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, हम भी यही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज, और कजिन्स हैं जो भी है फैमिली मेंबर्स, उनको देख के कर लिया कि मैं, फादर जो है आईएएस है तो मुझे भी आईएएस का ही तैयारी करना है, या मुझे भी वही बनना है, नहीं तो लाइफ में क्या कहते हैं और कुछ तो करना अच्छा नहीं है, या बेटर नहीं होगा, या लाइफ खराब हो जाएगी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन। ये भी बड़ा कॉमन है कि जैसे अपने यहाँ पे अगर हम देखें, अब शायद धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि अच्छे ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो साइंस ले लेंगे, कम, उससे कम आ गए तो कॉमर्स ले लेंगे, उससे कम आ गए तो आर्ट्स में चले जाएंगे। मतलब चॉइस बेस्ड नहीं है, जो मार्क्स आ गए उस पे बेस्ड है। और मार्क्स कैसे आते हैं हमारे सिस्टम में, हमें पता है कि आप रट्टा मार रहे हो, मगअप कर रहे हो, देन आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। बिकॉज एंड जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोग हैं, बच्चे हैं, लोग मीन्स बच्चे जो हैं, उनको पता है कि पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, मतलब आप फर्स्ट क्लास आराम से पास कर सकते हो, या उससे ऊपर ऊपर भी आ जाएंगे। तो वो भी एक होता है। दूसरा इसका आप देख सकते हो, आज की डेट में सीबीएसई वगैरह का हम लोग देखते हैं क्या होता है, कि अगर आप देखो तो इनमें सीबीएसई सीबीएसई वगैरह में अगर हम देखते हैं तो सबके ही 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन किस एरिया में, अब 100% आपका सीजीपीए और वो सब आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, तो अब आगे क्या, क्योंकि आप तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब में ही आप अच्छा करोगे, सब में ही आपका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सो ये भी एक माइनस पॉइंट है जो रहता है। एंड बेस्ड ऑन द ईज, क्या चीज आसान है, कई बार ये एटीट्यूड भी हमारा होता है, ये आसान क्या है, चलो वो कर लेते हैं, है ना। तो वो भी क्या कहते हैं, दे आर बैड रीजंस, जो फॉर, आप कह सकते हो, चूजिंग करियर। देन कॉमन मिस्टेक्स पीपल, एनी क्वेश्चन? No, sir. Thank you. Then common mistakes people do while choosing career, कि अब देखो एक चीज होती है जो रिसर्च प्रूवन भी है ना। अगर आपको बहुत इजी टास्क दे दिया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अगर आपको बहुत हार्ड और डिफिकल्ट टू अचीव टास्क दिया जाएगा तब भी आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो कहा यह जाता है कि व्हेन यू आर सेटिंग योर गोल, तो इट शुड बी एट मॉडरेट डिफिकल्टी। अगर आपको ये लग जाए, अगर किसी को लगता है कि वो, जैसे बहुत सारे देखते हैं कि किसी को ये लगता है कि ये टास्क मेरे लिए, सपोज फॉर एग्जांपल कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मेरे बस की बात नहीं है, या उसको लगता है मेरी एबिलिटी के बियॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए ट्राई ही नहीं करूंगा या कोशिश ही नहीं करूंगा। या मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बहुत इजी है ये काम, कोई भी काम हो सकता है, तो उसमें भी मैं ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करूंगा। अगर मुझे ये लगे कि मॉडरेटली चैलेंज टास्क है, कि हाँ इसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी करने में, देन उनका मोटिवेशन लेवल पर्सन का ज्यादा होता है। तो उसी तरह से अगर पर्सन की एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा मतलब हायर गोल है या बहुत ही लोअर गोल है, तो दोनों ही केसेस में पर्सन जो है वो डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेटेड होगा। और हम सबके साथ यही होता है कि बहुत इजी चीजें हैं या बहुत हार्ड होती है कि मेरे से होगा ही नहीं, तो वो चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, करते ही नहीं, है ना। बहुत हार्ड है तो हम हिम्मत हारते हैं, नहीं करना ही नहीं है। एंड बहुत इजी है तो हम भी सोचते हैं यार हो जाएगा क्या करना है ना। एंड देन उससे मजा नहीं आएगा आपको जब तक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग जॉब पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, या कोई भी प्रोफेशन में पैसे कमाने के लिए नहीं जाते हैं। सिंपल सा इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं,
कि अगर आप अपने हम सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब कर चुके हैं, है ना, या कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपको बोला जाए कि आपको पैसे दिए, जो सैलरी है मिलती रहेगी, काम नहीं दिया जाएगा, ऑफिस में जाओ एक कोने में बैठे रहो, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बिल्कुल, यस सर। है ना, और Yes. आपका सेल्फ स्टीम डाउन जाएगा। और क्या होता है, जब आपका मैनेजर, आपका बॉस बॉस आपसे नाराज होता है, तो वो आपको काम देना बंद कर देता है कि इससे इनको नहीं देंगे, इसको साइड में रखो, तो आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ दिन देखोगे, एंड अगर हमेशा के लिए ऐसा हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, और क्या होगा, जॉब छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में या कुछ इस तरह के जॉब्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि उसको लगता है कि उसको काम करना ही ना पड़े, दैट काइंड ऑफ थिंग, देन तो अलग बात है। अभी तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि काम नहीं करने, बिकॉज नाउ दे आर मोर लाइक at each point they evaluate and promote, and then if you are not working properly, they will forcefully give you the VRS of kind of thing। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। तो चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, फॉर विच नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर विच एन इंडिविजुअल मे नॉट possess the essential skills, aptitude, personality and interest। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आपको लोगों से बात करने में मजा ही नहीं आता, और आपको आपको बना दिया गया है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपने वहां पे, जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, और आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है रे, और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं आपको अपने बात को, तो वो चीजें तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। या फिर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हैं, काम दे दिया गया लोगों से बात करने का, तो अब क्या हुआ कि आप को तो ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो क्या होगा, वो आपका मतलब फोटे नहीं है, वो एरिया जिस आप उसमें बहुत अच्छे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी भी होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी अगर एक्सट्रोवर्ट है, आपको लोगों का बिहेवियर एनालाइज करने करने का पोटेंशियल यानी एप्टीट्यूड है, तो आपके लिए वो बेटर जॉब हो जाएगा। और ये सारी चीजें होने के बाद भी, स्किल्स भी हैं, एप्टीट्यूड भी है, पर्सनालिटी भी आपकी मैच करती है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोगों से बात करो, तो भी वो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होना चाहिए। तो जब व्हेन वी आर चूजिंग योर करियर, सो वी स्किल्स तो डेवलप की जा सकती हैं, है ना। एप्टीट्यूड का ये है कि एक पोटेंशियल होता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक जो आपका कुछ चीजें आप, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है, अगर हम टेक्निकली देखें, तो ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड का पोटेंशियल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर एक सर्टेन एरिया में, सपोज आपका एप्टीट्यूड जो है वो मैकेनिक्स में है, तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ट्रेन किया जाए, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी आपके उस एरिया में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हायर हैं देन any other people, or in comparison to any other area। तो ये इसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड इज ए पोटेंशियल, लाइक यू हैव पोटेंशियल, बट डेफिनेटली यू विल नीड a training also in that, right? Then based on what seems lucrative or glamorous, we already talked about it, and based on their assumption that then based on the exact nature of the work one would be required to do। तो अब क्या होता है कि आप किस तरह का, आपके एजम्पशंस हैं, कि आपका एजम्पशंस हैं कि किस किस तरह का आपको काम करना पड़ेगा, क्या नहीं, तो वो चीजें अगर आपने ठीक से नहीं समझी हैं, एंड तो अब आपने ये तो देख लिया कि मॉडलिंग करते हैं या एक्टर बन जाते हैं तो बहुत पैसा मिलता है, सारी चीजें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होता है कि भाई जो आप सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। दैट इज वाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होता है कि हम लोग कई बार रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में उनको दिखाते हैं, या उन फैक्ट्री सेटिंग्स या उन इंडस्ट्रीज में उनको ले जाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, जिससे दे कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द वैकेंसीज
और इट्स फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। सो अगले, आज आप पढ़ रहे हैं तो अगले 10 साल 20 साल में वो करियर कहाँ जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हम अभी देखते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का, तो हर कोई इंजीनियर डॉक्टर पहले इंजीनियर्स का हुआ, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए, लाखों के नंबर्स में लोगों ने करना शुरू कर दिया, एंड देन क्योंकि उतनी वैकेंसीज भी तो होने चाहिए, तो क्या होगा, उस एरिया में आपकी सैलरीज कम हो जाएगी कि ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, है ना। और लोग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी कंप्रोमाइज हुई। जैसे हम इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। सिमिलरली अगर मेडिकल की अगर हम बात करें तो देयर आर पीपल, दे आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रशियन कंट्रीज, जो जहां से वो करके आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या होंगी अगले 10 साल 20 साल के अंदर किसी एरिया में, तो वो भी हमें ध्यान में रखा, हाँ, हम अगर हम रखते हैं तो वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्किल्स हैं, लेकिन उस स्किल्स को हम कौन सा ऑक्यूपेशन सीखने में लगाएं या किन चीजों में लगाएं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि किसका रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में होगा, वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। And when looking at other success, person's success, then one's strengths and limitation, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे फोकस ना करके, वी when we focus on like what other people are achieving, ठीक है, उनके सक्सेस को देख के हम अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, अंकल है, अंकल का जो, एंड ही इज अ वेरी गुड लॉयर, ही इज अर्निंग वेरी गुड हैंडसम मनी, सो हम मुझे भी उसमें जाना चाहिए। बट हम ये नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन ये नहीं देख रहा है कि द पर्सन हु इज वेरी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन, उसकी स्किल्स क्या हैं, किस वजह से वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा है, और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको एंजॉय करेगा तभी करेगा। तो वो देखने लगते हैं हम, जबकि हमें क्या देखना चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमें नहीं पता होता है तो वी विल नॉट बी एबल टू like choose proper career based on the percentage of marks obtained in the examination. Again, we have discussed this thing. So these were the few things ki, how and why we choose a wrong career, right? तो और ये होता रहा है, मैं खुद अपने बचपन से ऐसे देखता रहा हूँ, इस तरह की चीजें होती रही, एंड आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग। द थिंग इज बिकॉज आई वॉज like I have taken this psychology subject and nobody knows कि इसमें होगा क्या या क्या करेगा, and everyone was in my family, everyone was working in a government sector, they were doing job, तो इस तरह की चीजें थी, तो we all face some or other kind of things. So if you are not good at it, you are not believing in your skills and all, then क्या होगा, you will leave it, because जैसे अगर किसी के कहने से आप कोई जॉब या कोई एरिया फील्ड पकड़ के चलते हैं, तो कल अगर उसके बारे में लोग नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे तो आप इजीली फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे। तो क्योंकि आपका ओपिनियन जो है वो दैट इज लाइक अफेक्टेड बाय अदर्स। सो if we focus on our strength and weaknesses and potentials and personality aptitude, then what will happen is whatever happens outside, that doesn't matter, you are good in certain areas and you know that accordingly you are choosing your career. Then negative consequence of making wrong. Any question till now? Anyone? Okay, so coming to No, next. sir. No, sir. Thank you. Okay, coming to next slide, negative consequences of making wrong career choices. अब हो क्या सकता है? Lack of interest, already we have discussed. Increased frustration, definitely होगा, और क्यों होगा? Now you know, because already we have discussed. The blame game begins. ब्लेम गेम देखा है कभी होते हुए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती दिलवा दिया, मेरा तो अभी मेरे पास एक क्लाइंट है बच्ची, है ना, शी इज डूइंग होटल मैनेजमेंट, है ना, एंड क्या हो रहा है,
एंड शी इज इन डिप्रेशन, एंड वो कह रही है कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, एंड वो फेक स्माइल लेके मुझे जाना पड़ता है रोज, बिकॉज ही इज लाइक शी इज इंटर्न राइट नाउ इन ए होटल, तो इन ए 5 स्टार होटल। से वो अब क्या हो रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज शी इज नॉट लाइकिंग इट, शी इज क्रिएटिव एंड शी हैज लाइक गुड इंटरेस्ट इन डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो। सो अब वो एंजॉय नहीं कर पाई, तो क्या हो रहा है, नाउ शी स्टार्टेड get it she like got frustrated, and she is on medication of depression, and now he started blaming, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के कहने से ले लिया, मेरा तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग happens. So walking down the ladder of depression and unhappy life, or I told you how it happens. Some experiences midlife crisis, जो मैंने बात की कि after some time, like when you, क्या होता है कि when you start your career, even if you don't like it, you do it, and then gradually what happens is you are busy with your family, you get married, you have children, you are like अपना सारा कुछ आप करते रहते हैं, and उसमें busy रहते हैं because you have lot of responsibilities, and after certain age like 35, 40, 45, after certain age, when you have less responsibility, and less responsibility, you are financially secure, then you start thinking कि what you have done, I think it is not for you and you should try something else. लेकिन उसके लिए बहुत courage चाहिए, सब लोग नहीं कर पाते हैं, most of the people they live with that thing whatever they are doing. So लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर से ज्यादा वो रहता है कि नहीं, ये नहीं, ये वाला ज्यादा बेहतर है, एज लाइक वी हैव डिस्कस विद वीना मैम, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे वो डिसीजन लेते हैं, और इट इज ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज आप एक चीज को छोड़ के बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेप से नई चीज शुरू करना चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियली, सोशली, एवरीथिंग यू हैव टू थिंक ऑफ। तो लेकिन there are people जो बहुत convinced होते हैं कि this is good for me and they go. I have like many people like that. Like few years back, I had a income tax officer from Delhi. She was like very much interested in humanities, but somehow उनके family में सारे लोग थे, तो उन्होंने भी अपना वो IRS क्लियर किया, और वो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पे, अभी वो डायरेक्टर और समथिंग बड़े हाई लेवल पोस्ट पे थे। तो उन्होंने फिर इग्नू से एमए किया, एमए करने के बाद में अभी क्या करें मुझे नहीं पता, बट शी सबमिटेड हिज लाइक हर डिसर्टेशन एंड ऑल, एंड शी वाज वेरी सिंसियर एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सो मे बी अभी वो कर रही नहीं कर रही, आई डोंट नो, बट इस तरह के डिसीजंस भी लोग लेते हैं, और ये उस टाइम की बात है जब वो नोटबंदी और ये सारा चल रहा था, उसके बाद की बात है, एंड शी वाज वेरी बिजी। सो पूरा ऑफिस और वो करना, उसके बाद भी उन्होंने सारी इंटर्नशिप्स और सारी चीजें की, बिकॉज शी इज कन्विंस्ड की, एंड शी हैज डिसाइडेड, जो उन्होंने मेरे को बताया था कि आफ्टर सम टाइम शी विल टेक लाइक 1 or 2 years, शी विल टेक वीआरएस एंड फुली शी विल कम इनटू द फील्ड। सो इस तरह की चीजें भी होती हैं, बट इट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब नाउ यू कैन थिंक ऑफ, लोग सोचते हैं कि भाई एक इनकम टैक्स कमिश्नर थी, आई थिंक, हाँ इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो, तो उस लेवल पे पहुंचने में ही कितना टाइम लगता है, और दूसरों को जब आप बोलोगे तो वो बोलेंगे ये तो बेवकूफी कर रहे हैं जो भी कर रहा है, तो ये भी होता है। तो दैट इज मिड लाइफ क्राइसिस, बट मतलब सारे लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, इवन कई बार कुछ तो करते रहते हैं, वो उसमें रूटीन में चले जाते हैं, कुछ को पता होता है कि वो ये काम उनके लिए नहीं है, बट दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। Right, now we are coming to these were the like few wrong reasons, and now we are coming to the right reasons behind choosing career, कि क्या क्या सही reasons हो सकते हैं या होने चाहिए, अगर हम कहें कि हमारे करियर को चूज करने के लिए। क्या चीज इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी कैसी है ना, कार्डिनल पर्सनालिटी, मेन ट्रेड्स क्या है। अगर आपको लगता है कि यू कैन अंडरस्टैंड पीपल, जैसे अभी वीना मैम बोल रहे थे, एंड एंड शिवांकी जी ने भी बोला हुआ है कि लाइक उनके पास लोग आते हैं, बात करते हैं, एंड शी कैन अंडरस्टैंड एंड दे फील अंडरस्टूड व्हेन दे कम टू दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स, द कार्डिनल ट्रेड्स, कि
we are able to empathize with others. So there are certain traits that you have. So on that basis, as well as इंडिविजुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका एप्टीट्यूड मतलब आपका पोटेंशियल किस एरिया का है, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, और आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या हैं, आपके लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मैं क्लिनिकल में नहीं काम कर सकता, क्योंकि जैसे ही होता है कोई भी चीज, कोई किसी का मैं सुनता हूँ कि उसको प्रॉब्लम है या उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना, तो या हो जाती हूँ, तो वो भी चीजें कई बार होती हैं। तो देयर इज अ अदर साइड ऑफ द प्रोफेशन। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या होगा, आपको पूरा दिन दूसरों की प्रॉब्लम सुनना है, तो क्या आप में उतना पेशेंस है, क्या आप एम्पैथाइज कर सकते हो, एज वेल एज क्या आप कट ऑफ कर सकते हो। द रीजन इज, आप सुबह से शाम तक अगर किसी 4 क्लाइंट्स को देख रहा हूँ और उनकी चारों की वो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं और चारों की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, तो रात में मैं सो नहीं पाऊंगा। मेरे पास तो कोई भी केस आएगा, किसी भी तरह का केस आ सकता है, तो उस तरह उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सो दैट इज लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। तो जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, दैट वो हमें जानना जरूरी है। एंड इंडिविजुअल्स मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है किस एरिया में जाने का, किस इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, तो इसमें आपकी क्या महत्वाकांक्षा क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड क्या वो बाहर से तो मोटिवेटेड नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपकी फैमिली वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, क्योंकि हर एक फैमिली का जैसे एक फैमिली है जहाँ पे अगर उसको पेमेंट का जॉब भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली इज हैप्पी, पर्सन इज हैप्पी एंड ही इज एंजॉयिंग हिज जॉब, राइट। बट देर में भी फैमिली की नहीं, ठीक है ये काम नहीं करना है, इस लेवल का नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क इज वर्क। बट देर आर सर्टेन फैमिली और सर्टेन एरियाज डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन एंड योर कल्चर, योर वैल्यूज। लाइक हम लोगों ने नॉर्थ में बहुत जगह देखा है, मैंने खुद देखा है कि गर्ल्स हैं उनके लिए फिक्स जगह टीचर का जॉब कर सकते हैं और कोई जॉब इतना नहीं करने नहीं देते हैं या उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। तो दैट देयर आर डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स आल्सो, वैल्यूज, कल्चर्स, ये सारे अफेक्ट करते हैं। तो वो भी हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए कि क्या चीज आप कर पाओगे, क्या नहीं कर सकते। अब सपोज यू आर टोटली लाइक वेजिटेरियन एंड आप जॉब करने लगते हैं, नॉन वेज रेस्टोरेंट है वहां पे करने लगते हैं, या किसी स्लॉटर हाउस का आपको बना दिया जाता है मैनेजर, तो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम इनसे डिफरेंट। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इंडिविजुअल्स एकेडमिक पोटेंशियल, सॉरी, उनका आपका पोटेंशियल किस तरह का है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं किसी जॉब से या पर्टिकुलर एरिया से या अपने करियर से, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का या कोई भी आईआईटी का, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर, तो क्या वो रिसोर्सेज आपके पास हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो या फैसिलिटी वाइज हो, कि उस तरह की यूनिवर्सिटीज और सारी चीजें आपके एरिया में अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें तो इनको हम कंसीडर करते हैं जब हम बात करते हैं द राइट वे टू चूज एनी करियर, राइट। एनीथिंग एल्स? सर, पर जैसे अपन कैरियर को चुनते हैं तो अपन को इतना अपने ऊपर, जैसे और भी बड़े लोग होते हैं उनका फोर्स होता है कि हमको इतना एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा होता है, तो अपन को उस कारण भी तो नहीं ले पाते ना फिर। तो यही तो कहना, दीज आर द रॉन्ग थिंग एंड दैट यू विल फेस। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं या आते रहे हैं, क्या होता है कि फादर का बिजनेस है, बच्चा कह रहा मुझे पढ़ना है, फादर डॉक्टर है, लड़का कह रहा है मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे सीए बनना है या मुझे पायलट बनना है, एंड दे आर सेइंग कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, जमा जमाया पूरा बिजनेस है, और लोग क्या कहते हैं, और क्या और ये बोलना शुरू करते हैं कि भाई इस आपको आके बोलेंगे कि इसको समझाओ कि हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, इन सब चक्कर में मत पड़े, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो बिजनेस फैमिलीज हैं
वो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते, वो कहते हैं जितनी 10 साल में ये पढ़ेगा, 10 साल में तो ये 10 करोड़ रुपए कमा लेगा बिजनेस में, है ना। एक एक मिनट होल्ड करिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, वो डॉक्टर धीरेन्द्र जी हैं, उनको भेज दो, है ना। सॉरी। तो ये सारी चीजें आती हैं फैमिली। आप आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? हाँ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब ये भी तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जैसे बोला कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब हम इंडिया में क्लाइंट किसी भी तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई हमारा फैमिली क्या कह रही है उनकी। तो उनको समझाना इज ए पार्ट ऑफ काउंसलिंग। उनको बताना, पहले एसेस करना, बताना कि आपका बच्चा किस एरिया में ज्यादा बेहतर कर सकता है, कहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। वो जो सारी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना। हेलो। जी सर, मतलब तो हमको ये जो ये चैलेंजेस पेरेंट्स होते हैं हमारे। उनको भी काउंसलिंग करनी है साथ में। क्या चीज? जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी समझाना है अगर वो ऐसे बोले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ, कोई आप बच्चा आ रहा है लाइक 15-20 ईयर्स का आपके पास, तो फाइनेंसेस रिसोर्सेस तो सारे फैमिली को ही लगाने हैं ना। और फैमिली कुछ कह रही है तो दोनों को बिठा के होता है। पहले तो हम असेस करते हैं कि किस एरिया में ये बेटर है, क्या ये बेटर कर सकता है और कहाँ इसको जाना चाहिए। जब हमें पता लगता है देन वी कॉल पेरेंट्स आल्सो एंड उनसे हम बात करते हैं। तो समटाइम यू विल गेट पेरेंट्स जो बहुत एडमेंट है कि नहीं इसको तो डॉक्टर ही बनना है। हमने इतना बड़ा, बिकॉज आई फेस दीज थिंग्स, आई हैव सीन दीज थिंग्स। सो इसको तो डॉक्टर ही बनना है, हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है ना। या इसको इंजीनियर ही बनना है, हमने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। या इसको एमबीए ही करना है, हमने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। तो ये कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि छोड़ दे ये कुछ और जाके पता चला डॉक्टर है और बेटा कह रहा है या बेटी कह रही है कि उसे तो थिएटर में जाना है या म्यूजिक में जाना है। तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा हो जाता है। और अगर वो अच्छा नहीं है म्यूजिक में तो वहां फ्रस्ट्रेट हुआ, तो दैट, अगर अच्छा है और काम में उसको दूसरे काम में लगा दिया तो वो डिससेटिस्फाइड है ना। समझ में आया शिवांकी जी? जी सर मैम। हाँ जी सर। वीना जी, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, अभी नहीं है कोई क्वेश्चन। थैंक हाँ, यू। तो ये बेसिक्स हैं आज हम बात कर रहे हैं आज। अब हाँ। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास में भी हमें यही बात करनी पड़ेगी, देन विल कम टू द तो 5 स्टेप्स इन करियर काउंसलिंग ये कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो करियर काउंसलिंग इज ए मल्टीफोल्ड प्रोसेस टू बी एबल टू अराइव एट द राइट करियर डिसीजन। वन नीड टू फॉलो द फॉलोइंग की स्टेप्स विद द मच कंसिडरेशन एंड थॉट एज पॉसिबल। तो क्या वो स्टेप्स होते हैं? मल्टीफोल्ड होता है, ये तो हमने अभी समझ लिया कि भाई कल्चरल वैल्यूज, aptitude, interest, personality, resources, everything is like must be considered। तो क्या हम स्टेप्स वो फॉलो करेंगे? फर्स्ट इज सेल्फ एनालिसिस कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। क्योंकि जब बच्चा 10, 12, 13, 14, 15 ईयर्स तक पहुंचता है तो पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि ये किस चीज में ज्यादा बेटर है। बिफोर दैट दे आर एक्सप्लोरिंग। कभी क्रिकेट, कभी आप देखते हैं घर में, हम अगर बच्चों को आपने देखा है तो क्या होता है हम लोगों का कि हम जब ये देखते हैं तो बहुत बार ये रहता है कि वो लोग बहुत सारी चीजें, कभी कुछ गिटार बनाना शुरू कर दिया, कभी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, कभी कुछ शुरू कर दिया। एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि वो उसको छोड़ देते हैं। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन एज, उनका एक इंटरेस्ट एरिया डरा तो दे नो कि किस चीज में बेटर है या नहीं है। तो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एंड देन क्या हमारा पोटेंशियल है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट क्या है, वो सारी चीजें, टैलेंट एंड स्किल्स किस तरह के हैं, क्या उसके एस्पिरेशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, वैल्यू सिस्टम जो हमने पहले भी बात की, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कैसा है वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है।
एंड रिसोर्सेज हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है और वो कह रहा है मुझे पायलट बनना है और एडमिशन उसके तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट लगेगा, भाई पैसा लगेगा, या बाहर जाना है स्टडी करनी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। टाइम कितना अवेलेबल है इसके पास, फिजिबिलिटी क्या है ना, कि to join a certain college or something. So वो resources basically that we have to assess also, and the medical condition that also affect. अगर कोई पायलट बनना चाहता है, नजर उसकी कमजोर है तो नहीं हो सकता है ना। Similarly, there are certain physical requirement for like if you want to be a pilot or you want to go into like armies and all, तो वो भी होता है। And दूसरा हमारा मेन मोटिव क्या है, अंडरलाइन मोटिव क्या है। कहीं हम किसी ग्लैमरस फील्ड को देख के तो नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर्स को देख के या किसी के कहने पे तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, जबकि हमारा वो पोटेंशियल नहीं है। तो वो सारी चीजें असेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड देन आता है करियर टेस्टिंग। तो करियर टेस्टिंग हम बेसिकली क्या है, दे आर द लाइक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स। एंड ये टूल्स क्या करते हैं, they assess like aptitude, personality, interest, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जिनकी रिलायबिलिटी अच्छी रिलायबिलिटी हो। 100% तो नहीं कहते, लेकिन लाइक 80%, 90% दे आर रिलायबल, कि अगर हम करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, उसका जो एप्टीट्यूड आता है, इंटरेस्ट आता है, और हमें जो उसका आइडिया मिलता है, तो वो जानने के लिए हम करियर टेस्टिंग और हम यू कैन से करियर प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं। तो अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो कॉलेज स्कूल्स में लोग कराते हैं, लेकिन कई मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, दे आर नॉट वैलिड टेस्ट, क्योंकि उसमें एक आपको ट्रेनिंग चाहिए। बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं और काम क्या कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है वो यूज कर रहे हैं, या देयर आर डिफरेंट मोटिवेशंस। बिकॉज सपोज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल्स में ये बोलते हैं कि हम आपके बच्चों की करियर काउंसलिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली उनका एक इंटरेस्ट है कि उनके कॉलेज में बच्चे आए, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो होता है कि उनको मैक्सिमम एडमिशंस अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है इनमें चाहिए, या कोचिंग वाले आ रहे हैं तो दे वांट जो कोचिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो लोग ज्वाइन करें। तो उनके सर्टेन, तो दैट इज नॉट ए करियर काउंसलिंग एक्चुअली, क्योंकि आप लोगों को बोल रहे हो कि कोचिंग ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छा करियर है, सारी चीजें, दैट इज नॉट ए करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग इज व्हेन यू आर असेसिंग द लाइक पर्सन टू गेट कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, अकॉर्डिंगली you are suggesting the career. Then you suggesting the best suited career option, because when you know कि उसका डिफरेंट एरिया, उसकी स्किल्स क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी क्या मोटिवेशंस क्या है, ये सारी चीजें जब, और रिसोर्स क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें जब आपको पता लग जाती हैं, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर सकते हो कि उसके लिए बेस्ट सूटेड करियर ऑप्शन क्या है, जो उसको ज्यादा बेटर बनाएगा। क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसका पोटेंशियल, जैसा मैंने बताया, उसका पोटेंशियल क्या है, अगर उस एरिया में हम उसको ट्रेनिंग दें तो वो फ्यूचर में ज्यादा बेटर कर सकता है। ठीक है, सो वो हम करते हैं। नैरोइंग डाउन द की करियर ऑप्शंस कि क्या क्या। अब ये सारी चीजें हमने असेस कर ली, बात कर ली, देन अब हम नैरो डाउन करते हैं कि कौन से एरियाज में वो जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, कि जिस एरिया में जाता है उसमें किस तरह का वर्क जो है वो रिक्वायर्ड है, किस तरह का स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उन सारी चीजों को। एक तो हो गया आपने बच्चे का या जो इंडिविजुअल है उसकी सारी चीजों को आपने निकाल लिया एक साइड में। देन यू हैव टू असेस द, जिसको हम जॉब प्रोफाइल बोलते हैं उसमें, तो आपने एनालाइज किया कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर उसमें इन्वॉल्व होगा, कि क्या स्किल्स, सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, किस तरह की लाइफ स्टाइल को कैटर करेगा, मनी और पर्क्स क्या उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, एंड क्या सिक्योरिटी और रिस्क हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एयर होस्टेस है, तो यू ज्यादातर क्या होगा कि एक सर्टेन बहुत जल्दी करियर जो है वहां पे खत्म हो जाएगा, एंड देन उसको कुछ और जॉब हो सकता है देखना पड़े। सिमिलरली देयर आर अदर जॉब्स आल्सो, सर्टेन काइंड्स ऑफ लाइक जॉब्स जहाँ पे उनके लिमिटेशन और फायदे होते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं. सपोज समवन इज गोइंग टू मर्चेंट नेवी, तो क्या होगा, ज्यादा टाइम तक आपको बाहर रहना है, सी में रहना है, अकेले रहना है, तो क्या उसके लिए वो प्रिपेयर है या हो पाएगा, वो चीजें हैं उसके अंदर, वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो भी होता है वो सारी चीजें हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें हम असेस करते हैं, यानी वो प्रोफाइल हम निकालते हैं. और इधर हमारे पास एक प्रोफाइल है, हमारा जो क्लाइंट है उसका है, उसके बेस पे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्सेज ऑफर करती हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी उनकी क्या होती है, इंडिया में स्टडी करना है या बाहर करना है, और एंड किस तरीके से हम उसको कहाँ से फाइनेंसेस करेंगे, और किस तरह से एप्लीकेशन हम लोग देंगे, वीजा एप्लीकेशंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ऑल दोज थिंग्स वी वर्क. तो दीज आर द things that like we do in career counseling. So there are other things also that we'll discuss in next class. So this is a 5-step process, in reality refers to what is called a career counseling. Most places and organizations provide career counseling do not follow all these steps actually. So and usually क्या होता है, अभी मैं ट्रेवल कर रहा था तो मैं मिला एक यंग लड़का ही था, he was working for upgrades, ठीक है. तो ऐसे बात होना शुरू हुआ तो उसने बोला कि हम लोग भी करियर काउंसलिंग करते हैं. तो हमने कहा क्या करते हो करियर काउंसलिंग में, तो उनका सिर्फ इतना काम है, ही वाज इन ए डिवीजन जहाँ पे क्या होता है वो बाहर लोगों को भेजता है और उसको भेजने के उनको सर्टेन अमाउंट मिलता है. तो वो सिर्फ इतना गाइड करते हैं, आपने बताया मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वो बता देंगे यूके में करनी है, यूएस में करनी है, तो यहाँ पे जाओगे इतनी फीस होगी, ये होगा, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में, एलओआर में, इन सारी चीजों में आपकी हेल्प करेंगे, आपका एडमिशन करवा देंगे. दे डोंट बॉदर अबाउट योर स्किल्स और आपका जो पोटेंशियल है उसके बारे में कोई बात नहीं की. तो दैट इज नॉट ए करियर काउंसलिंग. ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ बोलिए. कि सर ये सिर्फ एडमिशन के लिए तो नहीं हो सकता ना, करियर काउंसलिंग तो जॉब्स के लिए भी हो सकता है कि बिल्कुल, जॉब्स के लिए हो सकता है, स्ट्रीम चूज करने के लिए हो सकता है ना. और जब स्ट्रीम चूज कर रहे हैं वो जॉब उसी में आ गया ना आपका वो एडमिशन प्रोसेस, कि आपको आगे करना क्या है. आप अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट स्टेप तो वही आता है. देन क्योंकि जॉब तो आप तब करोगे जब आपने कुछ कर लिया है. सपोज आपने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, है ना, तो वहां पे फिर आपको, तो ये चीजें जितना जल्दी हम करते हैं उतना अगर अर्लियर लेवल पे हम, क्योंकि आज की डेट में तो ये बायजूस और ये सारे लोग तो 8th क्लास से आपको कोचिंग देना शुरू कर देते तो ये मतलब, और उसको ये बोलते हैं करियर काउंसलिंग. आते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड दे डिसाइड, बताते हैं ये कर लो वो कर लो, और ये सारी चीजें होती हैं. तो स्ट्रीम चूज करने में भी होता है. तो करियर टेस्टिंग क्या है एक्चुअली? प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, है ना, एंड टू अराइव एट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, है ना. तो जो हमने अभी बात किया सारा, है ना, सो दैट वी कैन मतलब फेयरली एक्यूरेट होते हैं ये टेस्ट, है ना, और इनको हम यूज करते हैं तो डिसाइड कि क्या हमें करना क्या चाहिए. तो 3 चीजों को हम असेस करते हैं, जैसे हमने बताया, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी. एंड एप्टीट्यूड भी मैंने बता दिया क्या होता है. इट इज लाइक एरिया वेयर यू कैन परफॉर्म बेटर इफ द कंडीशन इज इफ गिवन ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड है तो वो अच्छा ही हर चीज. इंटरेस्ट का मतलब जहाँ पे आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं किस एरिया में, आपका इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा है, क्योंकि अगर सब कुछ है इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे. पर्सनालिटी इज लाइक कोर, आपके ट्रेट्स क्या हैं उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं. यू ऑल आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, सो यू नो दैट. तो वो मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द थिंग्स लाइक बेसिक introductory part of the like career counseling training, so that we have discussed today. If you have any question you can ask, otherwise we'll wind up because I have to join another class है ना. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो. नहीं, बस मुझे भी मीटिंग में जाना है. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके मैम. ओके शिवांगी जी. थैंक्स एवरीवन. थैंक यू. ओके बाय.